Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my very dear students. I hope you all are very fine. This is Mrs. Bishra Javed, Assistant Professor of English from Government Degree College Women, Dubai Mahal Road, Bahawalpur. And today we are going to study our chapter number 11 from your second year English compulsory book. The name of our essay is First Year at Harrow, written by Sir Winston Spencer Churchill. Sir Winston Spencer Churchill was born on 30th November 1874 and he died on January 24, 1965. He was a British statesman, an army officer and a great writer. He was the Prime Minister of United Kingdom from 1940 to 1945. He led the country to victory in Second World War and he served his country again in 1951 till 1955. He was famous for his inspiring speeches. He is considered one of the most influential personalities of 20th century. This essay is about his childhood memories of his school, Harrow. It is situated in London, England, and is the fourth most expensive schools. Churchill has written many books, and this essay is also taken from his autobiography, My Early Life. He wrote it in 1930. In this essay, he shares his school time and experiences without any hesitation. Rather, it seems that he enjoys telling his experience of school life. He tells us that when he was 12 years old, he had to go through the exams, which were a great trial to him. Here he also tells us that he liked history, poetry and writing essay and wanted to be examined in these subjects. On the other hand, the examiner had a great love for maths and Latin. Here, he also complains that the examiner always asks about what the writer didn't know. और मर्जी चूँकि एग्ज़ामिनर्स की ही चलती थी, इसलिए वो कभी भी उनके सवालात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाया और इसका नतीजा ये था कि वो इम्तहानात में कभी भी बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सका. In the next paragraph, the writer shares his entrance exam experience with us. He describes in a humorous way that how he solved his Latin paper. He wrote his name on the top of the paper. Then he wrote question number 1 and after much reflection, बहुत सोचने के बाद, गौर फिक्र करने के बाद उसने वो जो नंबर 1 लिखा था, ही पुट ब्रैकेट्स राउंड इट, उसने उसके इर्द गिर्द एक ब्रैकेट्स लगा दी. इसकी पेपर पर कहीं से दब्बा लग गया और वो 2 घंटे तक इस अफसोसनाक मंजर को देखता रहा. बिलाखिर इम्तिहान का वक्त ख़त्म हुआ और एग्ज़ामिनर ने बाकी पेपर्स के साथ उसका पेपर भी हेडमास्टर की मेज़ पर रख दिया. He admires his headmaster, Mr. Weldon, who, according to him, was a man of great vision. He was a capable man looking beneath the surface of the things. The writer had always great respect for him. चूँकि उसका इतना ख़राब पेपर होने के बावजूद भी उसके हेडमास्टर ने उसको मौका दिया स्कूल में दाखिल होने का और अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करने का, तो इस वजह से वो अपनी ग्रेट फीलिंग्स का इजहार करता है अपने हेडमास्टर के लिए. साथ ही वो ये भी कहता है कि उसका मास्टर साहब जो थे वो अक्ल रखने वाले इंसान थे और वो सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों पे नहीं जाते थे बल्कि वो इंटरनली भी चीज़ों को जज करने की सलाहियत रखते थे. हेडमास्टर के फ़ैसले के नतीजे में उसे सबसे निचले दर्जे यानी चौथे दर्जे में दाखिल कर दिया गया. The names of the new students were printed in the alphabetical order. उनके स्कूल में जो लिस्ट थी उनमें नए बच्चों का नाम हरूफ तहज्जी के हिसाब से लिखा जाता था. But the writer could not take any advantage of it.
एज हिज नेम स्टार्टेड विद एस, चूँकि राइटर का नाम अल्फ़ाबेटिकली भी सबसे नीचे आता था. ही वॉज ओनली 2 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द होल स्कूल, तो तमाम स्कूल के जो बच्चे थे वो उनके आखिर में था. और बाद में जो आखिरी 2 लड़के थे वो भी किसी वजह से स्कूल छोड़ गए और वो सबसे आखिर पर रह गया. He stayed in this unpleasant situation for nearly a year, but being in the lowest form, he gained immense का मतलब बहुत ज़्यादा एडवांटेज, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ अपने साल उस क्लास में लगाने का. Over the clever boys, where the clever boys learned Greek and Latin as a splendid thing, but he was taught English. जो स्कूल के होनहार और चालाक बच्चे थे, होशियार बच्चे थे, उनको लातीनी ज़बान सिखाई जाती थी और उसकी तरह के जो बच्चे थे, कुन जहन बच्चे जिनको समझा जाता था, उनको सिर्फ इंग्लिश सिखाई जाती थी. उनको इतना कुन जहन समझा जाता था कि वो सिर्फ इंग्लिश ज़बान ही समझ सकते थे और उनको इंग्लिश पढ़ाने की ज़िम्मेदारी मिस्टर स्मर्वल को सौंप दी गई थी. According to the writers, Mr. Smurwell was a delightful person and an expert teacher. He had a system of his own. उनका एक अपना हिसाब था, उनका एक अपना तरीका था जिसके तहत वो बच्चों को पढ़ाते थे. क्या तरीका था उनका? He took a fairly long sentence and broke it up into components by means of black, red, blue and green inks. वो एक लंबा सेंटेंस लेते थे और उनको मुख्तलिफ रंगों की स्याहियों से लिखा करते थे और हर रंग जो था वो किसी न किसी ग्रामर के की के साथ रिलेटेड था. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिलेटिव क्लॉजेस, कंडीशनल क्लॉजेस, कंजक्टिव्स एंड डिसजंक्टिव क्लॉजेस और ईच हैड इट्स कलर एंड इट्स ब्रैकेट. हर एक कंपोनेंट को वो अलग रंग से लिखा करते थे ताकि वो बच्चों के लिए आसान हो जाए समझना. इट वॉज़ अ काइंड ऑफ ड्रिल, ये एक मश्क की तरह हुआ करता था. दे डिड इट डेली, जिसको उनको रोज़ करना होता था. ही रिमेन्ड इन द थर्ड 3 times. मुसन्निफ़ कहता है कि वो चूँकि तीसरे दर्जे में हर लड़के से 3 गुना ज़्यादा वक्त तक रहा, इसीलिए उसे ये ड्रिल भी 3 गुना ज़्यादा करना पड़ी. In this way he got the British sentence structure into his bones. यानी उसने हर चीज़ को इतना ज़्यादा पढ़ा कि वो उसकी हड्डियों में ही रच बस गई. Which was a noble thing, जो कि उसके लिए बहुत ही अच्छी बात रही. उसकी स्कूल के साथी जो दिलकश लातीनी शायरी करने पर दाद वसूल करते थे और यूनानी नसर लिखने पर इनामात हासिल करते थे, स्कूल के बाद इनको रोज़ी कमाने के लिए आम अंग्रेज़ी ज़बान पर आना पड़ा. Here writer says that he did not feel myself at any disadvantage. He wants every student to learn English first. The clever and intelligent boys even can learn Latin and Greek as honor and treat, but the writer says he would whip them hard for not learning English. राइटर कहता है कि मुझे बच्चों की दूसरी ज़बान सीखने पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ का क्या फ़ायदा जिसको आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा और आपने उस पर इनामात भी हासिल किए, लेकिन स्कूल लाइफ ख़त्म होने के बाद जब आप अपनी डेली रूटीन की तरफ आए और आपने रोज़ी कमानी थी तो उसमें आपको इंग्लिश दोबारा से सीखनी पड़ी. यहाँ पे राइटर अपनी नेशनल लैंग्वेज को हाईलाइट करता है कि हमें अपनी, और उसकी इम्पोर्टेंस शो करता है कि हमें अपनी नेशनल लैंग्वेज को प्रेस्टीज देनी चाहिए और उसको सीखने की तरफ तवज्जो लगानी चाहिए. ही रिकमेंड्स द क्लेवर बॉयज़ टू लर्न ग्रीक एंड लैटिन एज ट्रीट. वो कहता है कि हाँ, ट्रीट के तौर पे, एजाज़ी तौर पे आप दूसरी लैंग्वेजेस ज़रूर सीखें, लेकिन अपनी मादरी ज़बान पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन आंसर्स. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आई हैव इमर्स्ड देम. व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन एग्जाम्स. और दूसरा सवाल ये था कि द राइटर सेज दैट द एग्जामिनर आस्क क्वेश्चन विच स्टूडेंट्स कैन नॉट आंसर एंड नॉट दोज विच दे कैन आंसर. इज़ द कंप्लेन जस्ट, कि क्या ये शिकायत दुरुस्त है
के जो सवाल तलबा से पूछे जाते हैं वो उनका जवाब नहीं दे सकते। उनसे ऐसे सवाल पूछने चाहिए जो कि उन्हें आते हों। So the answer is the complaint is not just the intelligent students can answer any question. Only the dull and idle students complain so. Actually, the writer did not like Latin and mathematics, so he could not answer the questions about these subjects. यहाँ पे मुसन्निफ जो है वो ह्यूमरसली इस बात को करता है कि जो उसको आता था वो उससे पूछा नहीं जाता था, तो ये शिकायत जो है ये दुरुस्त नहीं है। Question number 2. What sort of questions are asked by examiners? Your examiner. जो पेपर्स हम लोग फेस करते हैं, हमारे पास आते हैं, उनमें क्या होता है, बोथ डिफ़िकल्ट और इजी क्वेश्चन हमें मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स का एक लेवल होता है और हमने उसी लेवल के हिसाब से पेपर सेट करना होता है, तो उसमें आसान सवाल भी होते हैं और मुश्किल सवाल भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. Why didn't Churchill do well in the examination? क्यों चर्चिल जो था वो इम्तिहानात में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका? चर्चिल could not do well in the examination. It was because he wished to be asked what he knew. उसको हमने अभी डिस्कस किया कि उसको हिस्ट्री, पोइट्री और ऐसे राइटिंग ज़्यादा पसंद थे, लेकिन एग्ज़ामिनर जो था वो उससे मैथ्स और लैटिन के बारे में क्वेश्चन किया करता था जो कि उसको नहीं आते थे, इसलिए वो पेपर्स को अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर पाता था। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ हाउ डिड ही अटैम्प्ट हिज लैटिन पेपर? उसका जो लातीनी ज़बान का पेपर था वो उसने कैसे सॉल्व किया था? इन हिज लैटिन पेपर ही जस्ट रोट हिज नेम, उसने सिर्फ अपना नाम लिखा, फिर उसने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा और उसके बाद ही पुट अ ब्रैकेट राउंड इट, और उसके इर्द गिर्द उसने ब्रैकेट्स लगा दी। Then unknowingly he put a bolt and a number of smudges on it, और उसके बाद उसके ऊपर स्याही का एक धब्बा लग गया और उसका पेपर जो था वो गंदा हो गया बहुत सारे नुक्तों से। Question number 5. Churchill was taught English at Harrow and not Latin and Greek. Was it a gain or loss? At Harrow, Churchill was taught English thoroughly. चर्चिल को मुकम्मल तौर पे इंग्लिश सिखाई गई और जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर था इट गॉट इनटू हिज बोन्स, और वो एक अच्छा राइटर बन गया। ही वॉज एबल टू अर्न हिज लाइवलीहुड। इट वॉज अ ग्रेट गेन फॉर हिम। उसने इतनी अच्छी तरीके से इंग्लिश सीख ली कि वो एक अच्छा राइटर बन गया और ये इसके लिए फ़ायदे की बात साबित हुई। जबकि दूसरे हाथ पे जब हमने देखा कि दूसरे स्टूडेंट्स जो कि लैटिन और ग्रीक पढ़ रहे थे, उन्हें अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए, रोज़ी कमाने के लिए दोबारा इंग्लिश ज़बान को ही सीखना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट गुड डिड हिज 3 years स्टे एट हैरो डू टू हिम? जो उसका 3 साल का क़याम था उससे उसको क्या फ़ायदा हुआ? During his 3 years stay at Harrow, Churchill learned English grammar thoroughly. मुकम्मल तौर पे उसने English grammar सीख ली. This helped him a lot in his practical life. He became a good writer and afterward the Prime Minister. Question number 7. In after years, how did the knowledge of English stand him a good stead? क्या फ़ायदा हुआ अंग्रेज़ी पढ़ने का? द एसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर गॉट इनटू द बोन्स ऑफ चर्चिल. ही फेस नो डिफ़िकल्टी इन द डेली अफेयर्स ऑफ लाइफ ड्यू टू हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश. ही बिकेम अ गुड राइटर एंड सक्सेसफुल पॉलिटिशियन. दस टीचिंग ऑफ इंग्लिश वॉज अ गेन फॉर चर्चिल. उसको आगे चल के कोई मुश्किल पेश ही नहीं आई बजाय इसके उन लोगों के मुकाबले में जो कि लैटिन और ग्रीक सीख रहे थे। Your last question is, write an appreciation or criticism of Churchill's view with regard to the study of Latin, Greek and English and their value in earning a living. In this age, Greek and Latin have no importance. इंस्टेड इंग्लिश हैज़ बिकम इंटरनेशनल लैंग्वेज. अब तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद इंग्लिश लैंग्वेज जो थी इट वाज गेटिंग राइज, उसको अरूज मिलना शुरू हो गया. उसके बाद ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रह गई थी.
Though all the modern knowledge is found in English, therefore, the man who knows English thoroughly can understand national and international issues. He can also earn his living easily. So, this was your chapter number 11. I hope you have a better understanding of it. Thanks for watching. Allah Hafiz.